कनेक्ट करायला सांगितलं त्यांनी प्रेझेंटेशन. ते सांगतील तेव्हा तुम्ही प्रेझेंटेशन स्टार्ट प्रेझेंटेशन चालू. दीपा मैडम. हाँ हाँ. कविता मी स्टार्ट. Good morning to one and all. I'm Dr. Kavita Robert Almeida, in charge of Women Development Cell of St. Joseph College. Welcome you all for this webinar. Before we start, I ask God to shower His blessing upon us and this webinar. Nanjit Mandal St. Joseph College was established in the year 1995. Our college is well known for its discipline and co-curricular activities. For this webinar, I welcome our resource person, Brahma Kumari Bharti Ben, Honorable President of Nanjit Mandal, Mr. Francis Tuscano, Vice President, Dr. Valerian Rodriguez, Secretary, Mr. Stanley Lobo, and Nandip Management Committee. I also welcome Principal of our college, Dr. Vincent Dimelo, sir, Office in charge, Mr. William Rodriguez, sir, Vice Principal, Dr. Subhash D'Souza, IQC in charge, Dr. Jonna Tuscano, and all staff members. I also welcome all participants from various parts of Maharashtra and India. Now I would like to introduce our resource person, Brahma Kumari Bharti Ben. The Brahma Kumaris are a religious movement that originated in Hyderabad during the 1930s. The Brahma Kumaris movement was founded by Lehraj Kriplani. The organization is affiliated with the United Nations and is known for the prominent role that women play in the movement. The Brahma Kumari Bharti Ben is a spiritual guide at Rajyog Center, Vasai. She chose this field to spread knowledge and empower people. She is a science graduate and has been a government school teacher. She has a great interest in meditation and practices it as a hobby. She has been living spiritual life since last 30 years. Now I request our principal, Dr. Vincent Dimelo, to say few words. Thank you, Dr. Kavita Madam. A warm and a graceful morning to our most valued resource person, Prajapita Brahma Kumari Bharti Ben, our beloved President, Mr. Francis Tuscano, sir, our Management Committee, conveners of today's webinars, Dr. Kavita Almeida, Assistant Professor Prasad Dabre, sir, Vice Principal Dr. Subhash D'Souza, sir, dear colleagues, and all the participants, all of you are warmly welcome at this webinar. About 5 months ago, we heard of a mysterious virus that was causing pneumonia-like symptoms. And today, much of the world has
We know it has come to a standstill. More than 4 billion people around the world are in some form of lockdown due to the coronavirus pandemic. The lockdown will be over one day and time will come to rejoin our work. But given the nature of the pandemic, everything is about to change. It's a difficult time, but luckily for us, it come together very well. We worked collectively in this type of situation. E-learning has emerged as the most effective option both for the students and teachers. Am I audible? Deepa madam? Deepa Yes, madam? yes. Today, our Nandip Mandal St. Joseph College of Arts and Commerce, Satpala Virar, under Women Development Cell and Commerce Association, jointly organizes a webinar on the topic Women and Crisis Management in association with Brahma Kumaris. Women is the cause of Genesis, and the world is beautiful because of her unique kind of sacrifice. At every sphere or phase of her life, she encounters with one or another crisis. She feels oppressed, insecure, and isolated. Still, she strives to come up from all such odds. It's a collective responsibility of each one of us to maintain the dignity of women. Today's webinar would be a minor attempt to strengthen and boost up the morale of women. Prajapita Brahma Kumari Bharatiben would enlighten our minds on the topic women and crisis management. To accept our invitation, I thank Prajapita Brahma Kumari Bharatiben on behalf of our Nandip Mandals St. Joseph College. I would like to thank our beloved President, Mr. Francis Toscano, sir, for a source of energy within us. We will ever remain grateful to our management and we thank you for being with us. I must mention my deepest sense of appreciation to conveners Dr. Kavita Almeida, Assistant Professor Prasad Dabre, and Vice Principal Dr. Subhash D'Souza. Today's technical support, Assistant Professor Deepa Lopez, has been great help today. Thank you for your efforts. My greetings to everyone present in the webinar. Thank you very much. Have a fruitful day. Thank you, Principal Sir. There is no tool for development more effective than the empowerment of women. एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती, एक आग, एक आस्था, एक विश्वास, यही है एक अच्छे दिन की शुरुआत। और यही शुरुआत आज ब्रह्म कुमारी करने जा रही है। कोरोना महामारी की इस दौर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज का ये वेबिनार कारगर साबित होगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं। We shall now commence with our webinar. You can post your questions in the chat box if any. Now I request Bharti Ben to take charge of the session. Thank you. सबसे पहले मैं आप सबका थैंक्स कहती हूँ। इतना सुंदर सेमिनार सेंट जोसेफ कॉलेज ने अरेंज किया, तो मैं सर डॉक्टर विंसेंट सर का भी और डॉक्टर कविता मैडम का और प्रसाद सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी आयोजकों को भी गुड मॉर्निंग और धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर समय को हम सफल भी कर रहे हैं और इस समय के इस सफर के साथ एक अलग सफर पर मैं आज आपको ले जाना चाहती हूँ।
वुमेन डेवलपमेंट का ये टॉपिक, पर इसको जोड़ा है हमने क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ, राइट है ना? तो मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करती हूँ, हम क्राइसिस मैनेजमेंट से स्टार्ट करके वुमेन डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे कि क्राइसिस में वुमेन का कितना इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है और वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ये हम देखेंगे। पर सबसे पहले हम कुछ सेकंड्स के लिए एक सॉन्ग सुनते, ब्यूटीफुल। मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है। अच्छा, okay. एक ब्यूटीफुल सॉन्ग से स्टार्ट करते हैं, लेट अस मेडिटेट। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। इंसानियत भी खतरे में। भारत ही नहीं मेरे भाई, सारा संसार है खतरे में। होशियार खतरों से खाली कोई यहाँ मकाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो। निद्रा से जागो, दुर्व्यसन बुराई को त्यागो। सोने का मृग मायावी। सभी पार्टिसिपेंट्स को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इस वेबिनार में मैं आप सभी का भी स्वागत करती हूँ। रियली हम सोचते जाएंगे कि सचमुच क्राइसिस मैनेजमेंट कहे,
क्राइसिस मैनेज की जा सकती है? सोचने की बात है ना। समस्याओं को मैनेज करना है कि समस्याओं में स्वयं को मैनेज करना है? हम जानते हैं बारिश आती है, हम बारिश से कंप्लेन नहीं करते, हम अपना छाता उठाते, हम अपना रेनकोट पहनते और अपने कामकाज पे चल पड़ते। ठंडी आती है, हम नहीं कहते कि ये ठंडी तो क्यों आई, हमको जाना है, मीटिंग है, नहीं स्वेटर पहना चल पड़े। हम अपने आप को बचाते हैं, अर्थात हम परिस्थितियों से कंप्लेन नहीं कर सकते या परिस्थितियों को या लोगों को मैनेज नहीं कर सकते। हमारे हाथ में है हम अपने आप को मैनेज करें। अगर हम अपने आप को मैनेज करने में सक्षम हो सके तो ही आने वाली हर परिस्थिति को हम मैनेज कर पाएंगे। कैसे करें मैनेज? कौन करेगा मैनेज? करने वाला कौन? इसके स्टेप्स को हम देखते हैं, क्योंकि समय प्रति समय जाने अनजाने में हम सभी युद्ध क्षेत्र में आ ही चुके हैं। ये हम सभी का कुरुक्षेत्र है और इस कुरुक्षेत्र में सब खींचे गए हैं। आने वाली हर परिस्थिति एक सैनिक का रूप लेती है, अलग अलग प्रकार से वो अटैक करती है। और आप सभी जानते हैं कि ये अटैक जो होने वाले हैं ना, नॉट ओनली फिजिकल, ये शरीर पर ही नहीं, ये मन पर भी अटैक है। आगे चलकर साइंटिफिकली ये स्टडीज कहते हैं कि आगे चलकर आने वाला समय मन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। मानसिक बीमारियों का समय आएगा, डिप्रेशन का समय आएगा। क्या अभी से हम ये नहीं देख रहे हैं? घर में बैठे बैठे भी डिप्रेशन आने लगा, घर में बैठे बैठे भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, फैमिली क्राइसिस बढ़ने लगे। क्या रीजन है? कौन सी बात को हम इग्नोर कर रहे हैं? चलो इसके स्टेप्स बाय स्टेप हम स्टडी करें कि कैसे हम फाइट करें। फाइटिंग का फर्स्ट स्टेप है बी फियरलेस। जब कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र में उतरता है, निर्भय होकर उतरता है। हम सभी टीचर्स से हम जानते कि कौन सा स्टूडेंट निर्भय होकर परीक्षा हॉल में एंट्री लेता है? कौन सा? जो प्रिपेयर्ड है। तो अपने आप को तैयार करना जरूरी है। जिसकी अच्छी तरह तैयारी है वो जरूर निर्भय होकर सामना करता है। कहा जाता है ये भय का भूत। एक बार कहते कि प्राचीन मिडिल समय में नगर के बाहर कुछ मॉन्क्स बैठते थे और नगर के अंदर जाने वालों पर नजर रखते थे। एक बार उन्होंने देखा कि बीमारी एंटर कर रही है, उसके साथ 2 पर्सन थे। वो मॉन्क्स उनको पूछते कि आप कौन हो और क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बीमारी हूँ, मैं मृत्यु हूँ और मैं भय हूँ। मॉन्क्स पूछते कि आप कितनों को लेके जाएंगे? जो बीमारी होती कि वो कहती मैं तो थोड़ों को ले जाऊंगी। मौत कहती कि जितनों को बीमारी ले जाएगी ना, उनसे आधों को ही मैं ले जाऊंगी। भय कहता है मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा। समय गुजर जाता है, पूरे नगर में वो बीमारी फैलती है और जब ये रिटर्न जा रहे होते हैं तब वो मॉन्क्स देखते हैं कि सबसे ज्यादा लोग तो भय के पीछे जा रहे थे। मॉन्क उनको पूछते कि अरे आपने तो कहा था कि हम किसी को नहीं ले जाएंगे। भय कहता है कि मैं नहीं ले जा रहा हूं, ये अपने आप मेरे पीछे आ रहे हैं। सच है ना? कहा जाता है डरने की आदत मृत्यु के पहले ही मारती। किसी ने बहुत सुंदर शब्द कहे हैं, बाजुए वो काम की मझधारों में जो तारती, बाजुए वो काम की मझधारों में जो तारती, डर डर के जीने की आदत, डर डर के जीने की आदत तो मौत के पहले ही मारती। तूफानों से लड़ना, तूफानों से लड़ना है जीवन की सच्ची आरती। आत्मबल संघर्ष शक्ति ही व्यक्तित्व को निखारती। सच है ना? डर डर के जीने वाला बहुत जल्दी मृत्यु को पा लेता है। अभी के ये क्राइसिस के समय में आप देखना 3 क्वालिटीज के लोग नजर आ रहे हैं। इसमें सिर्फ महिलाएं नहीं, सभी। अब इनको कैसे रोल चेंज करना है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन 3 क्वालिटी के पब्लिक जो है ना, एक है जो हमेशा भय के साए में जी रहे, हमेशा न्यूज सुनते रहेंगे, हमेशा उसके बारे में कई बातें सुनकर अफवाहें या जो वहम है उसको पालते रहेंगे डर के साए में। दूसरे हैं जो थोड़ा सा बेफिक्र होने का एक दावा करते हैं, देखते जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन ये सोच भी डर को छिपाने का ही एक तरीका है। और तीसरे होते हैं जो बहुत अवेयर है, बुद्धिमान है, वो इस डर पर विजय प्राप्त करके कुछ तैयारी कर रहे, कुछ सीख रहे, जैसे कि आप लोग,
हम सब एक अच्छे क्रिएटिव काम में लगे हुए हैं। तो ये जो तीसरी क्वालिटी होती है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट लेवल होता है कि जो अपने मिले हुए समय को भी सफल करता है और आपदाओं को अवसर में बदल डालता है। मोदी जी ने बहुत सुंदर शब्द कहे, रियली ऑब्स्टेकल्स अपॉर्चुनिटीज का रूप ले सकती है। तो तीसरी क्वालिटी के लोग अपने विकास में लगे हैं, जो भी समय मिल रहा है उसमें आज तक जो नहीं कर सके वो हम कर पा रहे हैं ना ऐसे। और जो भी अभी तक ऐसा लगता था कि मैं अपने आप के लिए नहीं टाइम दे पा रहा था, लेकिन अभी दे पा रहा हूँ। तो हम सभी इन बातों को समझे। और दूसरा है कि इस डर की बात पर विजय प्राप्त करने के लिए एक ये बहुत सुंदर साइकोलॉजिकल टेक्निक है। ये जो 2 सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो अंदर का सर्कल है ना, उसको कहा जाता है फील्ड ऑफ कंट्रोल, अर्थात हमारे हाथ में जो है। और ये जो बाहर का सर्कल है वो लाइफ में आने वाली अलग अलग सिचुएशन से, वो तो आनी है क्योंकि हम इस विश्व का एक छोटा सा हिस्सा है और विश्व में जो भी लहरें उठेंगी वो लहरें हम तक तो जरूर आनी है। तो फर्स्ट सर्कल में आपको दिखा है कि फील्ड ऑफ कंट्रोल जब छोटा होता है तो नेचुरली की कंप्लेंट्स बढ़ती है, फील्ड ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ता है, अर्थात जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उनकी कंप्लेन का जो सुर है वो बदलने लगता है, बढ़ने लगता है। वो परिस्थितियों से शिकायत करेंगे, वो लोगों से शिकायत करेंगे, हर बात से शिकायत में जीना या डर के साए में जीना, ये पहलू बन जाता। अब इसको चेंज कैसे करें, तो ये दूसरा सर्कल हम देखेंगे। ये बहुत सुंदर तरीका है। अगर हम अपने अंदर के कंट्रोल को बढ़ाए, अर्थात हमारी कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में जो है, हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। किसी ने खूब कहा है, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, हम आग को भी बदल देंगे बाग में। क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्राइसिस में विजय पाने का ये सबसे पहला तरीका है कि हम अपने आप को हिम्मत से भरपूर करें, मजबूत करें। तो जो फील्ड ऑफ कंट्रोल है ना, उसको बढ़ाने से देखिए क्या हो गया, जो बाहर का सर्कल है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, अर्थात कंप्लेंट्स कम हो सकती है। इसलिए इस समय में भी जो हमारे हाथ में है, अधिक से अधिक जो कुछ हम कर सकते हैं हम करते जाए, सीखते जाए। मुझे एक घटना याद आती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना। ये जो ऐसी घटनाएं होती है, उन घटनाओं में मनुष्य की मनस्थिति का भी अंदाजा आता है, उसकी पावर का अंदाजा आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ये घटना है, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन जो जू होने के कारण हिटलर की छावनी में पकड़े गए। अब वो जो सीन थे वो बहुत भयानक थे। उस टेंट में रोज किसी न किसी को सामने जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, गैस चैम्बर में डाला जा रहा है। और इस भयानक परिस्थिति में किसी का भी नंबर कभी भी लग सकता था। अपने परिवार वालों को सामने समाप्त होते देख रहे थे और ऐसी अत्यंत विपरीत परिस्थिति में कई लोग जी पाए, इसमें से बच गए। उसमें से डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन एक थे। उन्होंने वहां से बचने के बाद एक बुक लिखी, द मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग। आप ये बात भी नोट करना कि बहुत सारी अच्छी अच्छी क्रिएशन जेल में हुई है। लोकमान्य तिलक जी ने भी अपना ग्रंथ जो लिखा था मंडाले के तुरुंग में लिखा था। तो इस प्रकार की रचनाएं ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ पावरफुल लोग होते हैं जो वक्त के साँचों को बदल देते हैं, वक्त के साथ नहीं बदलते, साँचों को बदलते हैं। तो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन ने बाहर निकलने के बाद जो बुक लिखी, द मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग, ये जो बुक थी इसमें उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने उन कैदियों के अनुभव लिखे थे, उनका ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया पूरी लाइफ में। जब तक वो वहां थे उन्होंने उन कैदियों का ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने देखा कि बहुत सारे कैदियों का नंबर नहीं लगा, बचे। पर ये जो बचने वाले थे उनको उन्होंने स्टडी किया कि क्या था कि इनका नंबर नहीं लगा। तो ये देखा उन्होंने कि ये ऐसे लोग थे जिनकी लाइफ में कुछ मीनिंग था, कुछ करना था उनको। कई सोच रहे थे बस यहाँ से जाने के बाद मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है, मुझे ये कर, कुछ तो उनकी लाइफ का एक टारगेट था, मीनिंग था, पर्पस था। तो जिनके लाइफ में एक बहुत अच्छा पर्पस था वो उस बैड कंडीशन में भी जी पाए, और जो सिर्फ डर के साए में रहे ना, उनका नंबर जल्दी लगा। और इसके लिए ये जरूरी है। और एक बात देखा उन्होंने कि इन कैदियों को बिस्किट्स दिए जाते थे खाने के लिए, जो कि एक्चुअली कम थे, बहुत थोड़े होते थे, पर फिर भी वो लोग उसमें से भी कुछ बचाते थे
कि आगे चलकर ये भी नहीं मिला तो वंडरफुल है ना। कम से कम खाना, विपरीत परिस्थितियां, तो भी वो सरवाइव हो पाए, टिक पाए। तो ये ताकत थी कि उन्होंने फील्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब जो अंदर की ताकत को बढ़ाया, अंदर की क्षमता को बढ़ाया और अपने लाइफ को मीनिंग दिया। तो हमें भी जरूरी है, हाँ परिस्थिति आई है, जाएगी भी जरूर ऑफ कोर्स, लेकिन हम अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, अपने हाथ में जो है वो करना हम स्टार्ट करेंगे। और इसलिए सबसे पहला स्टेप ये है। अब सेकेंड स्टेप, एक्सेप्ट द चेंज। परिवर्तन, अचानक आने वाले परिवर्तन भी लाइफ में बहुत क्राइसिस लाते हैं। कई लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, इवन जॉब चेंज होना, घर चेंज होना या ऐसी भी कोई बातें, छोटी छोटी बातें भी कईयों को स्ट्रेसफुल महसूस होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में जी रहा होता है और वो चेंज नहीं करना पाता, वो उसके लिए एक सदमा सा हो जाता है। पर अगर हम चेंज को एक्सेप्ट करना सीखे तो हम प्रोग्रेस करते हैं। आप जानते हैं कि नेचर भी हमको यही सिखाती है। नेचर में जो चेंजेस आते, काल चक्र में, दिन चक्र में, देखिए ना, दिन और रात का साइकिल है। रात होती है हम उस प्रकार तैयारी करते हैं, दिन होता है हम अपने आप को वैसे तैयार करते हैं, सीजन बदलते हैं हम अपने आप को वैसे तैयार करते हैं। तो हर चेंज के अनुसार हम अपने आप को ढालते हैं ना। तो काल चक्र में भी कुछ अलग प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। वो बदलाव नेचुरल है, किसी के लिए थोड़े से खराब है पर किसी के लिए अच्छे भी साबित हो रहे हैं। मेरे से ज्यादा आप सभी जानते हैं कि जब करोड़ों इंसान घर में बंद है तो प्रकृति श्वास ले रही है, नेचर बहुत हल्का हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ओजोन लेयर वापस अपना स्थान ग्रहण कर रहे। तो शायद ही कुछ ऐसे प्लानिंग्स होते जो नेसेसरी भी हो सकते हैं, पर अब इसमें हम क्या करें, क्योंकि हमें तो टिकना है ना। तो नेचर हमको ये सिखाता है कि कुछ चेंजेस लाकर हम अपने अस्तित्व को टिका सकते हैं। कैसे? आप जानते कि सीजन बदलते ना, गर्मी में भी नेचर ऐसे फ्रूट्स पैदा करता है जो शरीर को ठंडक देता है, ठंडक में ऐसे फ्रूट्स पैदा होते हैं नेचर में जो शरीर को गर्मी देते हैं। नेचुरल सिस्टम है, बराबर ना? इसी प्रकार से आप देखना कि कई पंछी माइग्रेट करते हैं, ऐसे ही कई वृक्ष होते हैं जो गर्मी के सीजन में अपने पत्तों को गिराकर अपने अस्तित्व को टिकाते हैं, क्योंकि पानी को बचाना होता है। तो ये बचत, देखो नेचर से भी हम ये बातें सीखे, हम अपने को ढालने के लिए तैयार हो जाए। अभी बीमारी का पेपर हमारे सामने है और आप सभी ये भी जानते, क्योंकि आप सभी बुद्धिमान हैं, आने वाले समय में सेकेंड पेपर हमारे सामने खड़ा है, इकोनॉमिकल पेपर। हम सभी को ना इसकी भी तैयारी करनी है। तो क्या करें, हम भी अपने पत्ते अर्थात अनावश्यक आदतों को थोड़ा गिरा दें। इज इट पॉसिबल? हो सकता है ऐसी कुछ आदतों में हम चेंज लाएं। देखिए परिस्थिति चेंज लाती है, लेकिन जब किसी में जबरदस्ती चेंज लाया जाता है ना, तो वो थोड़ा सा तकलीफ देता है, दर्द देता है। और अपने आप प्यार से हम अपने आप को एडजस्ट करने लगते हैं ना, तो वो खुशी देता है और हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो क्यों ना अभी से हम अपने धन को बचाएं। धन बचाना भी धन कमाने जैसा ही होता है। कुछ आदतें कपड़ों की या खाने पीने की, रहन सहन की, कुछ आदतों में बचत की जा सकती है ना। हमारा जो भारत का प्राचीन सिस्टम या कल्चर कहो, सादा जीवन उच्च विचार, क्या इसे हम अपना सकते हैं? शायद इसे अपनाकर हम वापस भारत को विश्व गुरु का स्थान प्रदान करवा सकते हैं। तो इस सुंदर विचार प्रणाली को सामने रखते हुए जितना हो सके हम आने वाले समय पर नजर रखते हुए इस चेंज को एक्सेप्ट करें। और चेंज भी देखिए कितना वंडरफुल होता है कि आप लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सुना होगा, भले उस पर रिसर्च चल रहा है। मैं जब इस पर सोच रही थी तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी तक ऐसे कोई एंटीबायोटिक्स नहीं निर्माण कर पाए, पर प्लाज्मा थेरेपी की स्टडी में ये देखा गया कि जो पेशेंट कोरोना पर विजय प्राप्त कर रहा है उसके ब्लड में ऐसे कोई एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो अगर दूसरे पेशेंट को दिए जाए तो शायद वो रिकवर हो सकता है। मतलब उसमें वो लड़ाई करने की क्षमता है उस एंटीबॉडीज में। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं क्रिएट कर सके, लेकिन मानव शरीर ने तो क्रिएट किया ना। तो इस प्रकार नेचर में वो अपने आप क्षमता है। अगर समस्या है तो समाधान भी निश्चित है, सिर्फ हम मजबूत रहे।
सिर्फ हम परिवर्तन के लिए तैयार रहे, हिम्मत रखे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, तो क्या इम्पॉसिबल है। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे मैंने कहा कि धन को बचाने की बात है, एक और भी धन है जो दिखता नहीं है पर समय पर बहुत काम आता है, उसको कहते हैं दुआएं। दुआओं का धन, इसको कहते हैं इमोशनल सेविंग अकाउंट भी कह सकते हो, बैंक अकाउंट। हर व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में आता है ना, उसके साथ एक इमोशनल बैंक बैलेंस को डेवलप करता है, और ये इमोशनल बैंक बैलेंस समय आने पर बहुत काम करता है। दुआ अर्थात दिल से किया हुआ एक शक्तिशाली संकल्प होता है किसी के भले का। और जब ये ऐसे भी मैन पावर या माइंड पावर जो है, कभी हम इस पर भी टॉपिक ले लेंगे, लेकिन मनुष्य के मन में एक असीम क्षमता है, और उस मन के विचारों में जब दुआएं भरी जाए, शुभ भावनाएं भरी जाए, तो वो बहुत ताकत वाले काम कर सकती है। तो हम एक दूसरे से रिलेशन में इस बातों को इम्पोर्टेंट है। आप देखना इस समय एक्चुअली घर में रहते हुए भी फैमिली क्राइसिस का बढ़ना, ये जरा आश्चर्य है ना। दिन भर बाहर रहकर एक आध 2 घंटे के लिए घर में आके हंस खेल कर गुजारना, और आज जबकि 24 घंटा एक दूसरे के साथ रह रहे, तो एक दूसरे से टकराव भी हो रहे स्वभाव संस्कारों के। यहाँ पे जरूरत है थोड़ा झुकना, थोड़ा एडजस्ट करना। इसलिए दुआएं ये कैसी कमाई जाती है, जो गुणवान व्यक्ति होता है ना, नम्र होता है, हर्षित मुख होता है, एडजस्टेबल होता है, कोऑपरेटिव होता है, उसको सभी के दिल के दुआएं मिलती है। समय पर मदद करना, समय पर काम आना, किसी को मोटिवेट करना, ये सारे काम बहुत दुआओं में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की सेविंग्स को अगर हम बढ़ाएं, तो उसके डबल फायदे हो सकते हैं। एक फायदा है कि ये सेविंग आपको समय पर काम आएगी। दूसरा फायदा है कि जैसे देखो मंदिर, चर्च या मस्जिदों में भी हम देखते हैं अच्छे अच्छे स्थानों पे गुड वाइब्रेशंस होते हैं। किस कारण होते? वहाँ जो प्रार्थनाएं चलती है, प्रेयर चलती है, बहुत अच्छे थॉट्स का, वाइब्रेशन का वो असर होता है। अगर मेरे मन मंदिर में भी, मेरे मन चर्च में भी, मेरी मन रूपी मस्जिद में भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छे अच्छे संकल्प चलते रहेंगे, तो ये सुंदर दुआओं का सिलसिला मेरे ओरा को पावरफुल बनाएगा। आप जानते हैं ना, हम सबके आसपास एक बहुत अच्छा ओरा होता है, एक प्रभा मंडल होता है, वो भी हमारी रक्षा करता है। इस पर बहुत रिसर्च हुआ है कि जिनका ओरा पावरफुल होता है ना, वो अनेक बातों से बच पाते हैं। और कई बातें, मतलब ये बहुत एग्जाम, मैंने इस पर बहुत स्टडी किया है। एक प्रैक्टिकल घटना आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार दंगे फसाद हो रहे थे। एक डॉक्टर अपनी गाड़ी निकालते हैं, उनको इमरजेंसी फोन आता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी निकालते हैं। घर वाले मना कर रहे थे तो भी वो उनको जाना था। अब वो जैसे उनके बंगलों से बाहर अपनी गाड़ी निकालते हैं, सामने से एक ग्रुप आ रहा था जो दिन भर बहुत सारी गाड़ियां जला चुका था। अचानक डॉक्टर साहब की गाड़ी बंद हो जाती है। डॉक्टर मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति थे, वो शांत खड़े रहते। आश्चर्य होता है कि ये मॉब जो सुबह से गाड़ियां जला चुका था, वो मॉब उनको गाड़ी धक्का मार के चलाने में मदद करता है। कैसे ही हुआ ये है अच्छे संकल्पों का एक इफेक्ट। डॉक्टर का कहना था कि मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि मुझे उनके लिए रहम की भावना थी। तो ये रहम, कंपैशन, इसमें भी बड़ी ताकत होती है। आप शक्तिशाली बन जाते हो, आपका ओरा शक्तिशाली बनता है। दुआओं में ना धन्यवाद भी आता है। जितना हो सके ना हम थैंक्सफुल बने। केवल थैंक्स शब्द कहना और दिल से धन्यवाद देना, इसमें बहुत अंतर है। आपने कभी लाइफ में दुआएं दी है? चलो कुछ सेकेंड मेडिटेशन का अभ्यास करते, ब्यूटीफुल मेडिटेशन विजन के साथ जिंदगी में उन सब को हम दुआ दें। देखिए कैसे बहुत गुड फीलिंग्स अंदर क्रिएट होती है, और ये गुड फीलिंग्स आपको बहुत ताकत देती है। दिन में 5-7 मिनट निकाल कर भी इस प्रकार से हम मेडिटेट करें। चलो बी रिलैक्स, एकदम आराम से बैठिए, आंखें खोल के करिए। सामने कुछ विजन दिख रहे, उसको महसूस कीजिए, उस म्यूजिक को महसूस कीजिए, उन शब्दों को फील कीजिए, और अपने अंदर के वाइब्रेशन को क्लीन कीजिए।
ओम शांति। मैं अपने जीवन को बहुत ही ध्यान से देखती हूँ। मैं अनुभव करती हूँ कि मेरा जीवन परमात्मा दुआओं की छत्र छाया में पल रहा है। ये जीवन अनेकों की दुआओं से ही तो सींचा गया है। कुछ क्षण अपने अतीत पर एक नजर डालती हूँ। जन्म से जन्मदाता माता पिता की दुआएं, हंसता खेलता परिवार, जीवन रूपी पौधे को सींचने में, खूबसूरत बनाने में, इन सब प्यारे रिश्तों का, दोस्तों का, हितचिंतकों का, सबकी दुआओं का साथ रहा। जीवन के उस विशिष्ट डगर पर जहाँ से जीवन को एक दिशा मिलनी थी, वहाँ पर मिले हुए उन बड़ों का, शिक्षकों का, मार्गदर्शकों के दुआओं का वरदानी साया मैंने हमेशा अपने साथ पाया। और जब वो मकाम भी आया, जीवन को एक आध्यात्मिक उड़ान भरनी थी, वह ओम शांति। जीवन एक विशाल किताब है। मैं अपने जीवन रूपी किताब का गहराई से अध्ययन करने वाली इस प्रकार से हम दुआओं की प्रैक्टिस करें, अर्थात हम अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल वाइब्रेशन में हमेशा रखा करें। और ये ब्यूटीफुल वाइब्रेशन हमारी सेफ्टी का कवच बनेंगे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, इस युद्ध में हमारा सबसे मजबूत हथियार, हमारा सबसे मजबूत सैनिक, वो है हमारा पीसफुल, पॉजिटिव एंड पावरफुल माइंड। अगर हम अपने मन को सशक्त बनाएं, सशक्त बनाने के भी ये 3 स्टेप है। पीसफुल, सबसे पहले शांत। आप सभी अभी शांत बैठे थे, कैसे लगा? दिन में थोड़ा टाइम निकालकर गहरी शांति का हम अभ्यास करें। शांति में समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। ऐसे कहा जाता है आई ऑफ द स्टॉर्म, तूफान जब आता है ना, तो उसके मिडिल में जहाँ से तूफान स्टार्ट होता है वहां पे बहुत शांति होती है। तो अंदर चले जाए, कई इंट्यूशन मिल सकते हैं क्या करना चाहिए, आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। सेकंड है कि बी पॉजिटिव। मन जब सकारात्मक बनने लगता है, सकारात्मक मन ही शक्तिशाली होता है। हर परिस्थिति में हम जितना हो सके अपने आप को सकारात्मक बनाएं। कहा जाता है, बहुत सुंदर शब्द है कि कहते हैं किसी दो ने सलाखों के पीछे से देखा, ऊपर चांद और नीचे कीचड़ नजर आया। ऊपर चांद और नीचे कमल नजर आए। किसी ने कीचड़ में भी कमल देखा और किसी ने चांद में भी दाग देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल देखा और किसी ने चांद में भी दाग देखा। कई होते हैं
जो ऐसा ही चश्मा पहनते कि अच्छी चीज में भी कुछ दाग नजर आते, और कई होते हैं बुराई से भी कुछ अच्छा निकल पाते। तो दैट इज अवर एटीट्यूड। हम अपने नजरिया को बहुत बहुत पावरफुल बनाए, पॉजिटिव बनाए। रिश्तों में बहुत जरूरी है। रिश्तों में ऐसा होता है, हम जब साथ में रहते हैं ना, किसी में 10 गुण होंगे और 2 अवगुण होंगे, पर नजर जाती है उसके अवगुणों की ओर, और वहां से रिश्ता टूटना स्टार्ट होता है। और इसलिए जितना हो सके हम ऐसा चश्मा पहने। याद है बचपन में लाल हरे पीले चश्मे पहनते थे, जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा दिखता था। हम भी अच्छा दृष्टिकोण वाला चश्मा पहनेंगे ना तो सब कुछ अच्छा नजर आने लगेगा। और नेक्स्ट है पावरफुल माइंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सशक्त मन ही सामना कर पाता है। एक्चुअली परिस्थितियां छोटी बड़ी नहीं होती है। देखिए कोई भी वजन उठाना ये उस व्यक्ति की क्षमता पर डिपेंड करता है। बहुत शक्तिशाली है तो कितना भी बड़ा वजन आराम से उठा लेगा, और कमजोर है तो छोटे से वजन उठाना भी उसके लिए डिफिकल्ट है। इसी प्रकार से आप देखना, जब आप बहुत खुश होते हो ना तो बड़ी बड़ी बातों को भी टॉलरेट कर पाते हो। आप कहते हो जाने दो ना, हो गया, क्या होता है। पर जब आप उदास होते हो, थोड़े से दुखी होते हो, उस वक्त अगर कोई छोटी भी बात होती है ना वो आपके लिए बड़ी बन जाती है। तो ये उदासी, ये दुख, ये वीक माइंड, जब हम वीक होते हैं तभी बातें हमको बहुत बड़ी लगने लगती है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि गुस्सा करना, दूसरों को दोष देना, इरिटेट होना, तंग होना, दुखी होना, रोना, ये वीक माइंड के लक्षण। और स्ट्रॉन्ग माइंड बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है, मुस्कुरा सकता है, डांस कर सकता है, विश्व के लिए कुछ सोच सकता है ना। इसलिए कहते हैं फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, गम भुलाकर मुस्कुराना जिंदगी। अरे जीत कर खुश हुए तो क्या हुए, हार कर मुस्कुरा सको ना तो वो जिंदगी है। पर क्या हार कर मुस्कुराना इजी है? हो सकता है अगर हम अपने को पावरफुल बनाए, सशक्त बनाए। कैसे? फिजिकली सशक्त बनने के 2 ऑप्शंस होते हैं। अच्छा हेल्थ, इसके लिए चाहिए अच्छा डाइट एंड एक्सरसाइज, राइट। तो जैसे शरीर के लिए एक अच्छी डाइट की जरूरत होती है, आजकल हम कितने हेल्थ कॉन्शियस है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से हम अंदर क्या क्या जा रहे हैं। अगर हम दिन रात नेगेटिव बातें सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो नेचुरली उसका इफेक्ट तो मन पर होना है। और इसके लिए हम बहुत अवेयर रहे कि बहुत अच्छी अच्छी बातों को सुने, अच्छी अच्छी बातों को देखे, अच्छी बातों की चर्चा करें और अच्छी बातों को ही स्प्रेड करें। उसके साथ साथ एक्सरसाइज। मेजॉरिटी आप सभी बाहर नहीं जा सकते होंगे तो भी घर में तो एक्सरसाइज करते ही होंगे ना। परंतु इसी प्रकार मन को भी एक्सरसाइज की जरूरत है, मन को भी एक ड्रिल की जरूरत है। जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे हम अपने मन को टिका सके, उसको रिलैक्स कर सके, उसको एकाग्र कर सके। और ये टेक्निक, ये है मेडिटेशन का टेक्निक। ये भी इसके लिए भी हम जरूर समय निकालें, क्योंकि आने वाले समय में केवल फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ। इसलिए मेंटल एक्सरसाइज की हम प्रैक्टिस करें, रोज थोड़ा समय निकालें और अपने आप को रिलैक्स करें। ऐसे ही आप जानते हैं कि एक शरीर के लिए एक रेस्ट की भी जरूरत होती है। एक अच्छा आराम शरीर को कितना रिफ्रेश कर देता है, मन को भी रेस्ट की जरूरत होती है। कई बार देखिए रात को सोते सोते हम बहुत बातें सोचते हैं, कुछ देखते हैं, उस टेंशन में सोते हैं, तो उसका इफेक्ट होता है कि सुबह देरी से उठने के बाद भी व्यक्ति कहता है नींद पूरी नहीं हुई, इतना घंटा सो के भी क्यों फ्रेश नहीं, क्योंकि मन नहीं सो पाया। शरीर तो सो गया लेकिन मन सोच रहा था। इसको भी हम माइंड मैटर में कभी देखेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, टाइम कम है अपने पास इसलिए मैं आगे ही बढ़ती हूँ। इसमें है कि मन में संकल्पों का स्पीड हम कम करें, संकल्पों की भी बचत करें। ये मन की स्टेजेस है बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा, जिसमें डेल्टा वेव जो है वो एकदम रेस्ट पीरियड में होते हैं, कम से कम। सीपीएस मीन्स सर्कल पर सेकेंड्स। तो इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन आज ये कहना चाहती हूँ कि मन को कम से कम सोचने की हम आदत डालें। तो गहरी नींद और वैसे ही मेडिटेशन, कम सोचने की आदत हमारे माइंड को बहुत पावरफुल बनाती है। इस प्रकार क्राइसिस में बहुत बार देखा गया कि वो लोग बहुत जल्दी हिलते नहीं है जिनका परमात्मा में विश्वास होता है। ये साइकोलॉजिकल स्टडीज है। परमात्मा में श्रद्धा, परमात्मा में विश्वास, उसको अपना कंपेनियन बनाना एक बहुत बड़ी पावर है, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके लिए हम सदियों से गाते रहे हैं, माता पिता बंधु सखा के रूप में। सचमुच उस परमात्मा को हम अपना गहरा मित्र बना लें, उससे
माता पिता के संबंध हम अच्छी तरह प्रस्थापित करें, हम उससे रोज सलाह लें। जब हम अपना हाथ उसके हाथ में सौंपेंगे ना, आप देखना हम निश्चिंत जीवन जी सकेंगे। हाँ, हमारे कर्म क्षेत्र की लड़ाई हमारी है, हमें ही लड़नी पड़ेगी, वो नहीं लड़ेगा क्योंकि हमारा कुरुक्षेत्र है। पर वो मदद जरूर करेगा, वो राय देगा, इशारा देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन हमारे बचाने के लिए, हमारे विजय के लिए वो हमें कुछ न कुछ युक्तियां बताता रहेगा या शक्ति देगा उस परिस्थिति से लड़ने की। तो परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाए, रोज रात को सोने से पहले अपने दिल की सारी बातें उनको बताकर या लिखकर हल्का होकर सोए, तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम बहुत ही पावरफुल बन सकते हैं। अब हम आते हैं आज के मेन सोर्स की ओर, मेन टॉपिक की ओर, वुमन। एक्चुअली स्त्री के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन स्त्री परमात्मा की एक वंडरफुल रचना है। परमात्मा, कई बार आप देखो कि परमात्मा ने जो कुछ करना चाहा है उसमें स्त्री का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इस दुनिया में स्त्री के कारण बहुत बहुत कुछ कहा जा सकता है। आप सभी जानते हैं, इस पर बहुत सेमिनार होते हैं कि स्त्री घर को घर बनाती है। एक्चुअली आज मैं स्त्री मुक्ति, स्त्री पुरुष समानता, इन टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहती हूँ, लेकिन आज का जो टॉपिक है क्राइसिस में महिलाओं का योगदान, इसको कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट बात है कि रियली वुमन एक पावरफुल क्रिएशन है। वो ऑलरेडी सशक्त है, उसके अंदर बहुत ताकत है और ये सिद्ध भी हो चुका है। कई स्टडीज इस बात की ओर ध्यान खिंचवाते हैं। इसमें से फिजिकल या बौद्धिक पार्ट को आज मैं डिस्कस नहीं करती हूँ, लेकिन जो मेंटल पार्ट है, मानसिक क्षमताएं, क्राइसिस को मैनेज करने के लिए जो मानसिक क्षमताएं स्त्री में चाहिए, वो आप देखना महिलाओं में अधिक मात्रा में होती है। ये देखा गया है कि ये स्टडीज है कि मनोरुग्ण जो होते हैं, पागल खाने में एडमिट व्यक्तियों में देखा गया है कि स्त्रियों की संख्या कम होती है। तो स्टडीज ये कहते हैं कारण है कि स्त्रियां सदमा बर्दाश्त करने में अधिक पावरफुल है। ऐसी विपरीत परिस्थितियां जिसमें मन डिप्रेशन में जा सकता है, वो उनका बहुत सहजता से सामना करती है। हमने अपने लाइफ में ऐसी महिलाओं को आसपास देखा है। भारत का इतिहास तो ऐसी महिलाओं की, वीरांगनाओं की कथाओं से भरपूर है ही। इवन पर मुझे याद आता है, हम अपने आसपास क्यों ना देखें, मुझे मेरी माँ याद आती है। वो समय भी याद आता है यंग एज में, जब मेरे से 1 साल छोटी बहन, उसकी बीमारी और डेथ, 1 साल पहले मेरे पिता की बीमारी और डेथ, लेकिन हमने उस वक्त भी हमारी माता को, मम्मी को बहुत स्ट्रांग देखा, स्ट्रांग भी रही और दूसरों को, परिवार को भी संभालती रही। तो ऐसे स्ट्रांग पर्सन हमारे आसपास है जो परिवार को भी स्ट्रांग बनाते हैं। लेटेस्ट हम एक वीडियो देखते हैं, आप सभी भी इनसे परिचित होंगे, अरुणिका सिन्हा। ये वीडियो लंबा है लेकिन हम 5 मिनट के लिए हम सुनेंगे और आपको रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा सुनना। बहुत अच्छी प्रेरणा है कि कितनी बैड कंडीशन में, भयानक परिस्थिति में भी उसने अपना हौसला नहीं हारा, अपने आप को हर प्रकार से बचाने की उम्मीद नहीं हारी। और भी देखा गया है कि ये जो मैं स्टडी कर रही थी, तो थैंक यू सो मच आप लोगों को कि इतनी देर किसी को बैठ के सुनना सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि जब वहाँ पे हम बैठ के किसी को सुनते हैं तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है, ये मुझे लगता है। और एक्चुअली मैं 26 साल की हूँ। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने, मैं वॉलीबॉल चैंपियन भी रह चुकी हूँ, 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं, कंपार्टमेंट
हुआ था, थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा, दूसरे पैर की हड्डियां टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे। जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था। इतना ही नहीं, फ्री का इनविटेशन भी लोगों को मिल गया था, कुछ लोगों को। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। मैं ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम कर रहा था मेरे, लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। पूरे पल में वही चीज़ें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊँ। लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता। सुबह गांव वालों ने मुझे बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है, वहाँ पे हुआ था ये। सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा। तो फार्मासिस्ट, डॉक्टर, सीएम जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे, अरे हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें। मुझे भी नहीं दिखाई तो नहीं, लेकिन मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ। वहाँ पे कहाँ से हिम्मत आई मुझ में, मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला वहाँ पे कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा, तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी, मैं उस चीज़ को बर्दाश्त किया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे। शायद आपको यकीन नहीं होगा, या फिर कभी आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी, कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाया। मेरी इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया। आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ। जब भी मैं जब बोलती हूँ तब मैं वो चीज़ें महसूस करती हूँ। आप सुन रहे, उसका स्टैमिना, उसकी सहन शक्ति, और उसके बाद भी बहुत सारी परिस्थितियों को फेस करते हुए उसने अपनी लाइफ का कुछ टारगेट बनाया और उस टारगेट को बहुत बहुत दृढ़ता से पूरा किया। एक्चुअली आज टाइम कम है, लेकिन आप अपने आप इसे सुन सकते हैं। तो महिलाओं की अदम्य ताकत का ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी अनेकों अरुणिका सिन्हा हमारे अंदर है, हमारे पास है। एक्चुअली अंदर छुपी हुई इस ताकत को सिर्फ जगाने की जरूरत है। हम सभी स्ट्रांग है, हमारी सहन शक्ति बहुत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन शायद वो शक्तियों को हमने किसी कवर में ढक के रखा है। शायद कुछ लोगों की बातें सुनते सुनते सदियों से हम अपनी उन शक्तियों को भूल गए हैं। तो हम इन शक्तियों को वापस जगाएं। हम किसी भी प्रकार से कोमल नहीं है, कमाल करने वाली। हाँ, कोमल होना ये भी उसकी ताकत है, लेकिन उसको कमाल में परिवर्तन करना ये परमात्मा हमको सिखाते। और इसलिए हम ये देखिए कि स्त्री की और एक विशेषता मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो है बैलेंस पर्सनालिटी। आप सभी राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की इस थियरी को जानते हैं कि कहा जाता है राइट ब्रेन फेमिनाइन माना जाता है, जो क्रिएटिविटी, कंपेनेशन, केयरिंग, नर्सरिंग, सस्टेनिंग, इन बातों को बहुत महत्व देता है, इन बातों को प्रकट करता है। और लेफ्ट ब्रेन जो कि लॉजिकल होता है, एनालिटिकल होता है, अंडरस्टैंडिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर को डेवलप करता है। एक्चुअली देखा जाए तो महिलाओं में ऐसे कहते हैं कि राइट ब्रेन ज्यादा मतलब EQ का साइड जो है ना वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और मेल में लॉजिकल साइड। ठीक है, लेकिन EQ अधिक होना ये कोई कमजोरी नहीं है। एक्चुअली जरूरत है इन दोनों के सही बैलेंस की, और महिलाओं में ये बैलेंस पाया जाता है। परंतु समय गुजरते गुजरते ना हम लोगों ने क्या किया है, हमने समझा कि नहीं नहीं नहीं, हमें भी लॉजिकली होना चाहिए। हम लोग धीरे धीरे लेफ्ट साइड को ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लगे, क्योंकि समानता की दौड़ में भागने लगे। पर इस दौड़ ने हमारी उस क्षमताओं को ना छुपा दिया। हाँ ठीक है, कराटे सीखने चाहिए, ये सीखना चाहिए, मना नहीं है, भले सीखें। स्वरक्षा करना जरूरी है, पर स्वरक्षा के या स्व सशक्तिकरण के बहुत सारे और पहलू भी है हमारे पास। हमारी इनर पावर हमारी बहुत अच्छी ताकत है। हम अपने आप को अंदर से इतना सशक्त बनाए तो बुरी दृष्टि हमारी तरफ उठ नहीं सकती है, उसके साथ हम लड़ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय एक ऐसी महिलाओं का संगठन तैयार करता है और महिलाओं में वो क्षमता निर्माण करता है। आप देखिए कि समाज में इस लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा डेवलप करते करते क्या हुआ, आज फैमिली क्राइसिस में आप देखना हमारे बच्चे फेल क्यों हो रहे, सुसाइड की तरफ जल्दी क्यों जाते, रिश्ते क्यों नहीं निभा पाते, डिप्रेशन के शिकार क्यों जल्दी होते। कहीं ना कहीं ये राइट साइड कम इफेक्ट दे रहा है ना।
तो हमें इसको भी डेवलप करना जरूरी है। तो हम एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में उभर कर आ जाए, हमारी उस सुंदर क्षमताओं को, उस कोमलता को भी हम बनाए रखें, और साथ साथ हम लेफ्ट ब्रेन को भी बहुत अच्छी तरह डेवलप करें। तो हम एक बैलेंस पर्सनालिटी। और थर्ड पॉइंट है हाँ, अन्नपूर्णा, कि माताओं का, महिलाओं का एक बहुत बड़ा क्षेत्र। आज देखो कोरोना के कारण सब छुट्टी पर है, पर इस क्षेत्र में शायद छुट्टी नहीं। हाँ, हमारे ब्रदर्स आजकल मदद कर रहे, बहुत खुशी की बात है। समानता का युग इस प्रकार से भी नजर आ रहा है कि किचन में भी आज सभी ने हाथ बटाना स्टार्ट किया। परंतु इस क्षेत्र को मैंने यहाँ क्यों चूज किया, ये भी हमारी कमजोरी नहीं है, एक बहुत अच्छा क्षेत्र हमारे पास है। कहा जाता है दिल का रास्ता है ना पेट से जाता है, सही है ना? पेट से ही तो खून बनकर दिल तक पहुंचता है, पर सिर्फ खून नहीं, उसके साथ वाइब्रेशन भी पहुंचते हैं। हमारा विद्यालय इस वृत्ति और वाइब्रेशन पर बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। ये देखा जाता है कि आप सभी जानते हैं कि जो भी मन सोचता है उसके वाइब्रेशन हर चीज को ग्रहण करते हैं। अब जब भोजन बनाने वाला व्यक्ति गुस्से गुस्से से बना रहा होगा तो नेचुरली खाने वालों पर भी उसका इफेक्ट होता है। इसकी बहुत डिटेल स्टडीज है जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में सिखाई जाती है, आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये हीलिंग का क्षेत्र है। आप बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, आप हील कर सकते हो अपने प्यार से, बहुत अच्छे वाइब्रेशन से, बहुत मिठास से, बहुत ईश्वर की यादों में हम खाना बनाए। हमारे विद्यालय में हेडक्वार्टर में हजारों का भोजन बनता है, और हमारे अच्छे अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट ब्रदर्स है जो वहाँ पे खाना बनाने की सेवाएं करते हैं। परमात्मा के प्यार भरे गीत बज रहे होते हैं, और उसमें वो भोजन इतनों का बनाया जाता है, सफाई भी कितनी अच्छी रखी जाती है। तो भोजन बनाने का एक क्षेत्र, एक्चुअली भोजन दवाई का भी काम कर सकता है अगर उसको सही वृत्ति से और वाइब्रेशन से बनाया जाए तो। थोड़ा सा इसमें और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, इट्स योर चॉइस, नॉट कंपल्सरी, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि नेचुरल भोजन में शाकाहार बहुत इम्पोर्टेंट है। आज कोरोना की बातें है, कोरोना का हिंदी में करुणा कहा जाता है, तो कंपैशन के वाइब्रेशन होने चाहिए। जब किसी भी जानवर को मारा जाता है ना, वो डरता है, असहाय महसूस करता है, उसकी वो असहायता, डर, वो जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, नेचुरली उसमें होते हैं। और वो जब हमारे शरीर में जाएगा तो सोचिए ना कि हमारे मन में भी तो वो असहायता पैदा हो सकती है ना, तो निर्भयता कैसे बढ़ेगी? वो भय के वाइब्रेशन हम ले रहे हैं। तो ट्राई करके देख सकते कि 1-2 महीने के लिए अगर पॉसिबल है तो इस प्रकार के भोजन को हम स्वीकार करके देखें। तो ये भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा अच्छा क्षेत्र है। अच्छी वृत्ति से, अच्छे वाइब्रेशन से इस कला को हम यूज करें। और मैं ये कहना चाहती हूँ, फोर्थ महिला का जो चौथा रूप आज दिखाना चाहती हूँ, यू आर अ ग्रेट वॉरियर बट अननोन वॉरियर। सचमुच ऐसी एक योद्धा है जिसको कोई नहीं जानता है, लेकिन ये बहुत बड़े युद्ध को लड़ रही है। ऐसे कई स्टडीज है जिसमें कहते कि बुक्स है जिसमें लिखा गया है कि जब बमबारी होती है युद्ध के समय पे या घेराव डाला जाता है, ऐसे वक्त पे महिलाएं उन परिस्थितियों का सामना बहुत अच्छी तरह से करती हुई, समझदारी से करती हुई पाई गई है। ये बहुत स्टडीज है ये। तो महिलाओं में वो क्षमता है कि युद्ध क्षेत्र के समय ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने आप को और समाज को बचाने का स्टेप उठा सकती है। आज भी हम एक युद्ध के क्षेत्र में आ चुके हैं, भले हम घर में हैं, पर घर में भी हम सभी वॉरियर्स हैं ना आजकल। तो इस युद्ध में भी स्त्री एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। फर्स्ट, अपने आप को निर्भय रखे, दुर्गा का अवतार बनकर, शक्ति का अवतार बनकर वो अपने आप को भी बचाए और अपने घर के वातावरण को भी शक्तिशाली रखे। और जैसे मैंने ऊपर कहा कि वो बैलेंस रख के स्नेह से, प्यार से घर के वातावरण को एक स्नेहयुक्त शीतल ऐसा बना सकती है जिसका शीतला का रूप दिखाया जाता है। इसी प्रकार एक अच्छी सरस्वती का रूप धारण करके अपने घर में क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, इसका चॉइस भी उसको रखना चाहिए कि अच्छी बातों का सिलेक्शन रखे जिसका संस्कार बच्चों पर होने वाला है या घर में उसके इंप्रेशंस दिखने वाले हैं। तो ये भी एक अलग गुप्त युद्ध है कि जिसके द्वारा हम बहुत बड़े समाज का निर्माण कर रहे हैं। और इसलिए स्त्री के लिए जो कहा गया है ना कि अगर ये दुनिया एक गुलशन है तो नारी उसका माली है, ये दुनिया एक गुलशन है तो नारी उसका माली है। अगर झुक जाए तो वो सीता है, अड़ जाए ना तो चंडी और काली है, अड़ जाए तो चंडी और काली है। अर्थात सॉफ्ट एंड हार्ड ये दोनों रूप उसके पाए जाते हैं। इसका बैलेंस करके हम एक अच्छा युद्ध लड़े और इस वर्तमान समय में हम अपने परिवार को बचाए नहीं केवल, लेकिन उस परिवार को इतना सक्षम बनाए कि समाज को बचाने में भी वो मदद करे। इस प्रकार से महिलाएं
परमात्मा के द्वारा एक सुंदर विश्व लाने के लिए निमित्त बन सकती है। एक बहुत सुंदर वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं, जब घर घर में इस प्रकार की शक्तिशाली महिलाओं का निर्माण होगा और घर घर की एक एक महिला ऐसे सशक्त बनेगी, ऐसे स्नेह शक्ति आदि से अपने आप को भरपूर करेगी, घर के वातावरण को सुंदर बनाएगी, तो घर घर स्वर्ग बनेगा और देखते देखते विश्व स्वर्ग बन जाएगा। और इस बात के लिए मुझे बहुत अभिमान होता है, गौरव लगता है कि मैं एक ऐसी सेना के साथ जुड़ी हुई हूँ। आज ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय आध्यात्म का झंडा लेकर देश विदेश में महिलाओं द्वारा संचालित ये विद्यालय सभी जगह हमारी बहनें कार्य कर रही है। 140 देशों में ये बहनें भारत की अध्यात्म का झंडा लहरा रही है और भारत का वो प्राचीन गत वैभव, वो संस्कृति, वो संस्कार, वो संपत्ति वापस लौटाने के लिए हम सभी कार्यरत हैं। तो मुझे आज इस बात का बहुत अभिमान है, बहुत आनंद हो रहा है कि ऐसी महिला संस्था के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने जीवन को इसमें अर्पित कर चुकी हूँ। आप सभी को आज मेरे सामने देखते हुए भी मुझे खुशी हो रही है कि आप भी इन बातों को समझने की कोशिश करें, उस प्राचीन मेडिटेशन को अपनाकर अपने घर में एक सुंदर वातावरण का निर्माण करें, अपने आप को भी सशक्त करें और अपने परिवार को भी सशक्त करें। फिर कोरोना क्या और क्या, कोई भी बात को हराना हमारे लिए चुटकी की बात हो जाएगी, है ना। इस सुंदर से सेमिनार के लिए आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि ब्रह्मा कुमारी का ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स भी होता है, आप थोड़ा सा समय निकाल कर इसको जरूर सुनने की कोशिश करें और दिन में से थोड़ा टाइम निकाल कर मन को शांत करके, स्थिर करके, एकाग्र करके थोड़ा सा मेडिटेट करें। अभी करें 2-3 मिनट, अगर टाइम है तो 2-3 मिनट करें कि टाइम क्लोज। डॉक्टर कविता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हेलो, हाँ, 2-3 मिनट मेडिटेशन करें। हेलो, करें ना? ओके, थैंक यू। परिवर्तन नारी, थोड़ा कमेंट। एक अच्छी विद्यार्थी हूँ। मुझे पता है आने वाला समय परीक्षाओं का समय है, परंतु मैं निर्भय हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मैं एक यशस्वी विद्यार्थिनी हूँ। विशाल विश्व का मैं एक छोटा सा बिंदु हूँ, इसलिए वैश्विक घटनाओं की लहर मुझ तक जरूर आती है, परंतु मैं अपने आप को सशक्त बनाने में, अपने आप में परिवर्तन लाने की तैयारी में जुड़ जाती हूँ। जैसे गर्मियों के दिनों में कई पेड़ अपने पत्तों को गिराकर स्वयं के अस्तित्व को टिकाते हैं, ऐसे
आने वाली आर्थिक समस्याओं को समझते हुए मैं भी अपने जीवन की अनावश्यक आदतों को बदलकर सादा जीवन, उच्च विचार, इस सुंदर जीवन शैली को स्वीकार करती हूँ। सादगी मेरे जीवन का श्रृंगार बन जाता है। ऐसे समय पर बचत करना भी धन कमाने जैसा ही तो है। और एक परिवर्तन मैं अपने आप में लाती हूँ। आज तक मैं सिर्फ शरीर का ध्यान रख रही थी। शरीर को स्वच्छ रखना, उसका आहार, उसका व्यायाम, उसकी रेस्ट, पर अब शरीर के साथ साथ मैं मन पर भी बहुत ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मन मेरा वो सैनिक है जो आने वाले समय में मुझे विजयी अवश्य बनाएगा। आंखों या कानों के माध्यम से कोई भी भय, हिंसा, बहुत बहुत शुक्रिया। शांति, थैंक यू। सर हाँ हाँ, काही क्वेश्चन वगैरे असतील तर बघा. हाँ हाँ कविता, हाँ यस बोलू ना. Thank you, Bharti Ben. It was a wonderful session. Now I ask Assistant Professor Prasad Dabre to discuss questions, if any, and propose vote of thanks. Thank you, Kavita madam. Am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir. मैं सभी पार्टिसिपेंट से यह गुजारिश करूंगा. I request all the participants, if they have got any questions to ask, they may post those questions on YouTube live chat right now. I may request all the participants to post their questions on live chat YouTube. I have forwarded a message accordingly. We'll wait for a couple of minutes. If no questions, then we'll start with the Thanksgiving session. One participant is asking that, is there recording backup of this screen session? रिकॉर्डिंग बैकअप है क्या? है? One more question, Rakhi Ranapurkar, how to change one's thought process? थॉट प्रोसेस को चेंज करना एक बहुत अच्छा स्टडी है एक्चुअली. जैसे मैंने इसमें एक बात कही थी कि राखी जी, कि थॉट प्रोसेस को समझना जरूरी है.
थॉट्स क्रिएट कैसे होते उसको समझिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप आंखों से कानों से अंदर ले रहे हैं वही थॉट्स को क्रिएट करने का साधन बनता है। तो अगर निगेटिव इंफॉर्मेशन अंदर डाली जा रही है तो थॉट प्रोसीजर उसके आधार पर डिपेंड करती है। तो थॉट प्रोसीजर को चेंज करना है तो पहले जो फीडिंग अंदर जा रहा है उस पैटर्न को चेंज कीजिए। रोज जो जिस प्रकार का चेंज चाहते हो ना उस प्रकार की बातें सुनना देखना आरंभ करें। और जैसे कहा कि मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज आदि आपको इसमें हेल्पफुल रहेगा। One more question from Manjit Singh. हाँ जी। How to reduce various thoughts which creates fatigue and anxiety? हाँ, इसलिए मैंने कहा कि एक्चुअली माइंड मैटर ये अलग टॉपिक है। कभी हम अगर आप वापस हो सका तो हम एक बार इसके लिए मिलेंगे कि थॉट्स को रिड्यूस करने के लिए भी मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल रहता है। हम बहुत कोशिश करके अपनी कुछ आदतों को बदल डालने की मेहनत करनी पड़ेगी। स्टडी है एक प्रकार से। रेगुलर कुछ मिनट का आप मेडिटेशन किया करें और ऑब्जर्व योर थॉट्स। हर घंटे में जैसे देखिए कि ब्लड टेस्ट करते तो पूरा ब्लड नहीं लेकिन थोड़ा सा ब्लड लेके टेस्ट किया जाता है। इसी प्रकार से हर घंटे में मेरे अंदर चलने वाले थॉट्स को मैं ऑब्जर्व करूं, रीड करूं। अब जैसे किसी छोटे बच्चे को आप ऑब्जर्व करने लगते हो उसकी चंचलता कम होती है। इसी प्रकार से अगर आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, विचारों पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस होने लगेंगे। और वैसे भी पावरफुल थॉट्स होते हैं ना जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है वो कम होते हैं और वेस्ट थॉट्स की पैदाइश ज्यादा होती है। ये मैंने कहा बहुत डिटेल मैटर है। हम कभी और आपको रिक्वेस्ट है कि मेडिटेशन सेंटर से आप और अधिक जानकारी ले सकते। बहुत बड़ा मैटर है टॉपिक है लेकिन आप कोशिश करें मेडिटेशन की और ऑब्जर्व योर थॉट्स, चेक योर थॉट्स। हाँ जी। एक पार्टिसिपेंट बोल रही है I was little sad due to lose of my job, but after this session, I am feeling good. Thank you so much. Thank you. One more question from Chaya Shah. This situation is bringing negativity and uncertainty. How to overcome continuous thought process about this? प्रसाद सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है थॉट प्रोसीजर से संबंधित है। डॉक्टर अपने प्रिंसिपल सर भी सोच सकते तो कभी एक स्पेशल सेमिनार हम अरेंज करेंगे थॉट मैटर पर, माइंड मैटर पर। Sure. 5 मिनट में समझाने की बात नहीं। या और फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि यूट्यूब पर सिस्टर शिवानी बहन या और भी अच्छे बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं, आप इसको सुनने की कोशिश करें। Okay. I hope Bharti Ben has replied several questions. So it's time to propose a vote of thanks. दुनिया एक गुलशन है, नारी उसकी माली है। बहुत सहज और सुंदर शब्दों में ब्रह्म कुमारी भारती बेन ने आज के टॉपिक पे वुमेन एंड क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर अपने स्वर्णिम अक्षरों में, स्वर्णिम शब्दों में हमारा ज्ञान बढ़ाया है। दोस्तों, since last couple of months we haven't been to our respective religious places, पर आज हमारे बीच में भगवान के फरिश्ते हाजिर हैं। Messenger of peace, ब्रह्म कुमारीज have been working since 1940. आज 80 साल से पूरी दुनिया में एक शांति की पहल ब्रह्म कुमारीज की तरफ से हो रही है। भारती बेन के स्वर्णिम शब्दों से हमारे आत्मा को अधिक ऊर्जा व गति मिली है। थैंक यू भारती बेन फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड बीइंग हियर एज अ रिसोर्स पर्सन। थैंक यू वेरी मच। Not end, but we have been collaborated, or there is an association of St. Joseph College and BK Brahma Kumaris since last 1 decade. And we are proud to be associated with Brahma Kumaris. Thank you once again. We pray for your congregation. Thanks a lot. I thank our college management, our president, Honorable Mr. Francis Toscano, and all office bearers for being always supportive. A man of perfection and discipline, our principal, Dr. Vincent de Mello, sir, thank you for encouraging us to have such kind of webinars. Thank you, Vincent, sir. Thanks a lot. I thank our vice principal, Dr. Subhash D'Souza, sir,
IQAC Coordinator Dr. Jonna Toscano Madam, Office Superintendent Mr. William Rodrigues for their continuous support. Friends, to organize today's webinar, Self-Finance Coordinator Ms. Deepa Lopez, our Assistant Professor Shraddha Madam, and our Assistant Professor Jordan Sir, they have extended their wholehearted support. Thank you, Deepa Madam, Shraddha Madam, and Jordan Sir. Today's host and main organizer, Dr. Kavita Almeida, we appreciate your initiative to organize this unique kind of webinar. Kavita Madam, thank you very much. I extend my profound thanks to all my St. Joseph College teaching, non-teaching staff members. And last but not least, thank you very much to all the participants who have shown the interest and registered for today's webinar. Thank you very much. Thanks a lot. Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, thank you. Now I would like to request Deepa Madam to wind up the session. Thank you. Dear participants, your feedback link will be provided in your WhatsApp group, and the certificates will be available to within 2 to 3 working days. Thank you very much. Survey any online YouTube. Thank you. We may conclude the seminar now. Yes, 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 yes. Deepa. Thank Thank you you. very much, Deepa Madam, Yeah. for your technical support. Parthiven, see you soon. Yeah. Thank Yeah, you. thank you, thank you, thank you, thank you. Meeting